Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Yes, today we have to learn how to pass the journal entry. Journal entry, first we have to know the exact meaning of journal. What is the journal entry? When the transaction takes place in the enterprise, the first recording in the books of original entry, how this one is recorded, that is called the journal. According to the accounting principle in double entry system, whether one side of the transaction debited, the other side is credited. What is the process of recording the transactions in two aspects? I would like to tell you yesterday. Now you can see journal. In Hindi, my dear, जो इसे रोजनामचा कहते हैं, हिंदी में इसे रोजनामचा कहा जाता है। इसका एक एप्लीकेबल रूल होता है, उस रूल के तहत हम जर्नल बनाते हैं। वो हम आज आपको बताएंगे और फिर एग्जाम्पल देंगे। देखिए, फर्स्ट रूल जो होता है वो क्या होता है? रूल्स ऑफ पासिंग द एंट्री। इसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है एंट्री पास करने का? इन इंग्लिश यू कैन सी व्हाट कम्स इन डेबिट, what comes in, that is debit. Means in हिंदी, आने वाली माल या वस्तु, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, जो हमारे पास फर्म में आता है, चाहे परचेज करें चाहे एसेट्स हो, जो आता है उसे हम डेबिट कहते हैं। सेकेंड वन, what goes out, credit. What goes out, इसे हम करते हैं क्रेडिट। तीसरा, रिसीवर। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। रिसीवर का मतलब पाने वाला व्यक्ति। फोर्थ, गिवर क्रेडिट। गिवर क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट होता है। इनकम ये क्रेडिट होता है। ये दिमाग में होना चाहिए। व्हाट कम्स इन डेबिट, आने वाली माल या वस्तु डेबिट होता है। व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जाता है, उसके बदले में जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो वैल्यू हम सेक्रीफाइस करते हैं, वॉट एवर द वैल्यू सेक्रीफाइस बाय द बिजनेसमैन in exchange of other thing receiving, the value of anything receiving, that will be debit and credit. And the person who gives on credit the item, that is called debit, and the person who sacrificed, who is the giver of the particular item, that is called credit. All the expenses during the accounting period, just they are debited and incomes are credited. Whatever income received by, whatever the income earned by the organization or enterprise, that is credited. Remember, my dear children, this one is the golden rule of commerce, how the transactions are debited or credited. Which transaction is debited, you know it, the applicable rules, what comes in debit, what goes out credit, receiver is the debit,
giver is the credit, all the expenses debit, and all the income credit. Now just draw the format of journal. What is the format of journal? Just you can see over here. Draw the line, parallel line, two line this way. You can see first column, that is called the date of month. First column is the on which date of month. Second column, that is particulars, memorandum, I mean to say whatever the just the brief explanation given to the transaction in this column. And second one, ledger folio number, LF, that is called in short form LF, ledger folio. And then amount column, amount debit, amount credit. This one is the debit and right hand side credit. This way you can draw the format of journal. Now just I am going to quote the examples of the transactions when the business begins with cash. Suppose that you are the businessman, your name is X, started business with cash 1 lakh rupees. The money invested by you, my dear, whatever the money invested by you, that is 1 lakhs. And 1 lakhs rupees invested by you, you can see this way. Suppose that is the 1st April 2021. In date column, just you have to mention the date of the transaction. 1st April 1/4/2021, and you are going to start the business. What comes in the firm, being the businessman in the firm, what comes in? Just you must have studied about the accounting equation. Assets is equal to liabilities plus capital. Capital invested by the owner, that is the sources of finance, and whatever the assets, creation of the assets, that is called cash. Cash comes in cash account debit. Cash account debit to capital account. Cash account debit to capital account. Suppose that 1 lakh, just you can mention the amount in debit column 1 lakh, and in straight whatever the capital, just you can write over here 1 lakh capital. I think it will be clear for the sake of you how the transaction takes place in the organization and the entries are passed. Now two types of the transactions just can take place in any enterprise, that is the cash, and other one is credit. This one is the cash invested by the owners in the business. Suppose that purchase goods for cash. Purchase goods for cash. Purchase always debit. Whatever the items purchased by the owner for resale, having some margin on the particular item, that is called purchase. Suppose that purchase goods in which, goods one of the word in which the businessman deals with, वह वस्तु जिसका वो व्यवसाय करता है उसे ही हम केवल गुड्स कह सकते हैं, जिसको मतलब खरीदता है और बेचता है. तो परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है. व्हाट कम्स इन डेबिट? रिमेंबर, परचेज ऑलवेज डेबिट, ऑल द एसेट्स ऑलवेज डेबिट, इनकम्स एंड लायबिलिटीज क्रेडिट. दिस वन इज द फॉर्मूला. तो 1 अप्रैल को 1 लाख रुपीस का यदि आपने कैश परचेज किया है
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपीज, 1 लाख यहां मेंशन कर दिया, 1 लाख यहां मेंशन कर दिया। यही व्हाट कम्स इन, या गुड्स अकाउंट कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट, और उस हमारे पास से पैसा जा रहा है टू कैश। क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, टू रिफर्स फॉर द क्रेडिट। क्लियर? हम जहां तक सोचते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे आप क्रेडिट परचेज यदि करते हैं, क्रेडिट परचेज करेंगे, जब क्रेडिट परचेज करेंगे आप तो देखेंगे कि उसके बदले में आप कुछ नहीं देंगे। उधार लेन देन जब करते हैं तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 50,000। जो नियम होगा बेटा, जो है कि आने वाली माल या वस्तु, परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो क्रेडिट परचेज करेंगे आप तो परचेज अकाउंट डेबिट इसमें भी होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब इसके बदले में आपके पास से कैश नहीं जा रहा है, गिवर मतलब इसका व्हाट कम्स इन, इसका इससे क्रॉस आप देखेंगे एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो गिवर जब उसके बदले में हम कुछ दे नहीं रहे हैं, न कैश दे रहे हैं न कुछ भी दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे टू मोहन। ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बीइंग गुड्स परचेज 50,000, तो 50,000 डेबिट में भी होगा और 50,000 क्रेडिट में भी होगा। ये इस तरह का एंट्री करते हैं, इस तरह से जर्नल एंट्री बनती है। अब आइए हम एक एग्जांपल आपको सेल का देते हैं। सपोज दैट जिस भी डेट को आप सेल करते हैं, डेट ऑफ मंथ उस कॉलम में आप लिख देंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने सेल किया, नगद मतलब बिक्री किया, 1 लाख रुपए का आपने बिक्री किया। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1 लाख। यदि इस तरह का इंफॉर्मेशन है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो जब हम माल बेचेंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश आ गया। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि नगद बिक्री है तो टू सेल्स अकाउंट। 1 लाख रुपए का हमने माल बेचा। तो दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो नगद बेच सकते हैं, उधार भी बेचते हैं। जब उधार बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? जिसको बेचेंगे गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट 50,000, 50,000 का 1 लाख लिख दिया, 50,000 का हमने बिक्री किया, किसको? मोहन को, क्रेडिट पर। तो रिसीवर हो गया, मोहन रिसीवर, और आपके पास से माल जा रहा है तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट, पाने वाला व्यक्ति है तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट 50,000 का आपने सेल कर दिया। क्लियर? 50,000 का आपने सेल कर दिया उधार, तो रिसीवर डेबिट इसी नियम के अनुसार, रिसीवर डेबिट एंड व्हाट गोज आउट, आपके पास से माल जा रहा है टू गुड्स अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, सेल के रूप में। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न, ठीक इसका ऑन द कॉन्ट्रेरी, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट।
मान लीजिए जो आपने माल खरीदा हुआ है कुछ डिफेक्ट हो गया, चाहे किसी चीज़ की किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसे क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो रिसीवर जो होगा उसे डेबिट करेंगे, और जो या नगद करेंगे तो उस तरह से होगा, रिसीवर होगा उसे डेबिट करेंगे और टू परचेज रिटर्न लिखेंगे। उसी तरह से आपने सामान बेचा हुआ है, यदि सामान वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गिवर, जो भी होगा उसे क्रेडिट कर देंगे। और यदि नगद वापसी हो रही है, नगद आपने वो किया है, तो आप बेचा हुआ सामान तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल और बेचा हुआ सामान यदि वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू आपके पास से कैश उसके बदले में देंगे, तो टू कैश लिख देंगे। मतलब दो ही तरह से ट्रांजैक्शन होते हैं। अब आइए एक्सपेंसेस पर हम बताते हैं, उसके बाद हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड एंट्री। अब बिजनेस हो रहा है भाई, बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपका खर्च भी तो होगा, तमाम तरह की मजदूरी है, वेतन है, स्टाफ रखे हुए हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको कैसे आप करेंगे। Now you can see whatever the expenses incurred during the assessment year or accounting period just debited, paid wages paid to the labor 500 rupees. This one is the expenses incurred. मतलब आपने माल मंगाया, चाहे उस पर ढुलाई दी, किराया दिया या कुछ, तो जो भी एक्सपेंसेज होगा वो डेबिट होगा। तो आप वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज, 500 रुपीज। आप देखें कितना आसान तरीका है। सैलरी पेड, सपोज दैट एनी वर्कर just doing the job in your enterprise and you have to pay the salary for whole years or per month। जिस डेट को आपने सैलरी पे किया, चाहे 31 मार्च को, चाहे 1 अप्रैल को या कोई भी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज दैट 6,000 रुपीज, 6,000 सैलरी में लिखेंगे, 6,000 कैश आपका होगा। मतलब दोनों एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा पद्धति चलता है और इसके अनुसार इस तरह से जर्नल एंट्री बनती है। जो नियम है बेटा, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझेंगे कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किस तरह का है। उस ट्रांजैक्शन को समझने के बाद सबसे पहला काम होगा कि वो नगद है कि उधार है। नगद है तो कैश से संबंधित है, उधार है तो रिसीवर और गिवर होंगे। कोई एक्सपेंसेज है तो उसे डेबिट कर देंगे टू कैश। कोई इनकम है, जैसे कमीशन रिसीव किया तो आपके पास क्या आया, कैश आया। किस रूप में आया, कमीशन के रूप में, इनकम के रूप में, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो जिस तरह से एक्सपेंसेज इनकर्ड होता है उसी तरह से इनकम भी आप करते हैं। अब आप इस फार्मूला को जब अप्लाई करेंगे तो आपका कभी जर्नल गलत नहीं होगा। डे टू डे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रॉनिकल ऑर्डर इन द बुक दैट इज कॉल्ड जर्नल बुक। दिस वन इज द ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। ये ध्यान देना जरूरी है और इस पर ध्यान देंगे तो आपका जर्नल कभी गलत नहीं होगा। तमाम क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में। मेरे प्यारे बच्चों, इसे सीखें और सीखने की कोशिश करें। इस नियम के तहत आप अप्लाई करें इस नियम को अप्लाई करेंगे तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। इसे पूरा अंडरस्टैंडिंग पावर अपना जागृत करके जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप सवाल को लगाएंगे, सलूशन बनाएंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा।
इस तरह से जर्नल बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।